بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے 2 صوبوں میں انتخابات التوا پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ کل سنایا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے بائیکاٹ اعلامیے کے بعد عدالت نے حکومتی وکلاء کا موقف نہیں سنا۔ سیکرٹری دفاع کے سیکیورٹی معاملات پر تحفظات سامنے آنے پر عدالت نے سر بمہر تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کا آغاز ہی اعتراض سے ہوا۔ اٹارنی جنرل نے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی اور استدعا کی کہ کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ نہ کرے۔ عدالت نے درخواست میں اٹھائے گئے اعتراضات سے اتفاق نہ کیا اور کیس کی سماعت جاری رکھی۔ عدالت نے بینچ سے الگ ہونے ججز کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے۔ 27 فروری کو 9 رکنی بینچ نے از سر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ جب بینچ دوبارہ تشکیل ہوا تو 5 رکنی تھا۔ چیف جسٹس نے جسٹس فائز از خود معاملے پر فیصلے پر کہا کہ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ نہیں دیا، خواہش ظاہر کی تھی، دوسرا جب ایک جج بینچ سے الگ ہو گیا تو فیصلہ سننا بنتا ہی نہیں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے حکومتی اتحاد کے وکلاء کو سننے سے انکار پر فاروق ایچ نائک روسٹرم پر آئے تو عدالت نے کہا کہ حکومت نے تو بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو بینچ پر تحفظات ہیں، بائیکاٹ نہیں کیا۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آپ بائیکاٹ کر کے دلائل دینے آ گئے۔ سیکرٹری دفاع کے سیکیورٹی تحفظات پر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن میں ڈیوٹی کے لیے جنگجو فوجی نہیں چاہیے، ریٹائرڈ آرمی جوان بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ سیکرٹری خزانہ سے کہا کہ صرف 20 ارب روپے کے تو اخراجات ہیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں 500 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ کیس کا فیصلہ منگل کو سنایا جائے گا۔ مخلوط حکومت نے سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی کا دھواں دھار خطاب، کہتے ہیں چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس، سپریم کورٹ میں پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن ملتوی کیس کی گونج۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔ بائیکاٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کرپشن کے الزامات والے جج کو بینچ میں شامل کر کے چیف جسٹس کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ اسمبلی میں کئی لوگ جو جیلیں کاٹ رہے تھے اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں، میں نے کسی کرمنل کیس میں جیل نہیں کاٹی۔ آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران ایک انہوں نے ریمارکس دیے، کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف تو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے بے بنیاد کیسز بنائے، میرٹس پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی اہلیہ عوامی نمائندہ اور سرکاری عہدیدار نہیں تھی تو گرفتاری کے وقت مریم نواز شریف کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ انہوں نے کہا جناب کہ ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا، ان کے پاس کوئی عوامی نمائندہ وہ نہیں تھی، تو جب نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملک کو مشکلات میں دھکیلا، اب آئی ایم ایف نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔
3 जजेस पर हुकूमत नहीं बाकी जजेस का अदम एतमाद है। मुनासिब है कि आइन के मुताबिक लार्जर बेंच बनाया जाए। अगर लार्जर बेंच ना बना आइनी बहरान के बायस मार्शल लॉ या एमरजेंसी का खदशा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लार्जर बेंच का फैसला सर आंखों पर होगा, अब भी वक्त है, सबको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। जस्टिस साहब और जो जस्टिसेस हैं हमारे, वो खुद अपने हाउस को इन ऑर्डर बना दें, वो खुद लार्जर बेंच बना दें, और अगर वो लार्जर बेंच बनाएंगे और उनमें क्लैरिटी होगा तो हम सब उनके हर फैसले का ना सिर्फ दिफा कर सकेंगे, इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शफाफियत लाई जाए। इस मामले पर कानूनी हलकों में शदीद बेचैनी है। एक ऐसा बेंच तश्कील दें जो सबको काबिल कबूल हो, वरना प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में जब 4 के 3 से एक फैसला आ चुका है, ये प्रोसीडिंग्स एक 3 रुकनी बेंच के सामने काबिल समात नहीं हैं, तो ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाएं। दबाना अपील की गई, मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, नज़र आए कि वो इम्पार्शल हैं, नज़र आए कि वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक हैं। ये ज़रूरी है कि उनमें शफाफियत लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। एक नुकाती एजेंडे पर यह हंगामी इजलास तलब किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो बुरानी कैफियत है अदलिया के फ़ैसलों को लेकर भी, और इससे कबल जो सूरत हाल हम देखते रहे हैं, जो सियासी अकाबरीन के दरमियान एक सियासी रस्सा कशी जारी रही है। बहरहाल अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया है। एक नुकाती एजेंडा है जिस पर यह हंगामी इजलास तलब किया गया है, और देखना यह है कि इसमें क्या अहम फैसले किए जाते हैं, क्योंकि पीर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। लेकिन आज जो फैसला महफूज किया गया, जो कि कल सुनाया जाएगा, उससे कबल क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से भी यह हंगामी इजलास तलब किया जा सकता है। पंजाब और केपी आम इंतखाबात का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों को हातमी शक्ल देना शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पोलिंग अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने और नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रायल जारी हैं। इंतखाबात के लिए मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत फराहम कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों सूबों के आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल ही इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं, और पोलिंग अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने का जो अमल है वो जारी है। और देखा जा रहा है कि जितना अमला पहले फाइनलाइज किया गया था वो ऑन बोर्ड है या नहीं, और साथ साथ नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रायल भी जो है वो तेज कर दिए गए हैं। उसके हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत जो है वो पहले फराहम की जा चुकी थी। अब उन्होंने लोकल सतह पर जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग करना है। इलेक्शन के अमल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो भी तश्कील दी जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन की जो शनाख्त है उसका अमल भी इस वक्त जारी है, और पोलिंग स्टेशन के लिए जो इमारतें जो पहले उनको तयन किया गया था उनको दोबारा से देखा जा रहा है। उस हवाले से सर्वे भी जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और रिटर्निंग अफसरान की तरफ से भी सिक्योरिटी जो है वो जो है कर ली गई है। और पंजाब इंतखाबात का अगर बात आती है तो उस हवाले से एपलेट जो ट्रिब्यूनल है वो दोबारा से अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि इस हवाले से जो कागजात नामजदगियां थी उनको चैलेंज किया गया था कुछ उम्मीदवारों की तरफ से, वहीं से दोबारा सिलसिला शुरू होगा। और जो अपीलों के बाद जो है फैसले के बाद हतमी जो फरिश्ता उम्मीदवारों की वो आवेदन की जाएगी। इंतखाबात के हवाले से तारीख मिलने के बाद बाकी मानदा जो मराइल हैं वो इलेक्शन कमीशन के जराए बताते हैं कि वो बाद में मुकम्मल किए जाएंगे। ताहम ये जराए बताते हैं कि फंड्स और सिक्योरिटी का मेन इशू है, अगर वो प्रोवाइड की जाती है तो किसी वक्त भी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से दायर की गई है। शिकायत आईएनटी के आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई है। रेफरेंस में कहा गया है कि जज साहिब ने अपनी आमदन से ज़ायद असासाजात भी बना रखे हैं। अवाम
اور بارز کے اعتماد کے لیے جج صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے؟ عبدالغنی کاکڑ بیورو چیف کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ عبدالغنی، کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، بلوچستان بار کونسل نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ آرٹیکل 209 جو ہے ان کی خلاف ورزی کے مبینہ طور پر مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ اسی آرٹیکل کے تحت ہی دائر کیا گیا ہے، اور اس میں مجموعی طور پر اوورآل اگر بات کی جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس ریفرنس کے حوالے سے جو جنرل موقف ہے وہ مس کنڈکٹ کی ہے، اور مس کنڈکٹ کی شکایت کے تحت ہی جو کارروائی ہے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالغنی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، فوری چارج چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کی جانب سے جاری سرکولر کو عدالتی فیصلے کے خلاف قرار دے دیا۔ خط میں لکھا، عدالتی فیصلہ پڑا ہوتا تو دیکھتے کہ اس میں کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا۔ سرکولر میں جس فیصلے کا حوالہ دیا گیا اس کا اطلاق اس کیس پر نہیں ہوتا۔ سرکولر جاری کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی۔ رجسٹرار کو عدالتی فیصلے ریورس کرنے کا اختیار نہیں۔ ایک بیوروکریٹ کا رجسٹرار تعینات ہونا آرٹیکل 175(3) کی خلاف ورزی ہے۔ کام سے لگتا ہے آپ رجسٹرار کا عہدہ سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ اور آپ کے بہترین مفاد میں ہے کہ سرکولر کو فوری واپس لیا جائے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی کا جو بھی رہنما گرفتار ہوتا ہے وہ واپس آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے۔ سیاست میں ہمدردی حاصل کرنے کا پی ٹی آئی نے یہ ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بیانیے پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف عمران نیازی جھوٹا بیانیہ بنا کر بدنام کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ ابھی جو نیب قانون میں ترامیم آئی ہیں ان میں نوٹس کا کیا طریقہ کار ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ شہری محمد جنید کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو این95 میاں والی سے نااہل قرار دے چکی ہے اور نااہلی کے بعد کوئی پارٹی سربراہ نہیں رہ سکتا۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا لیکن عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر انٹرا کورٹ اپیل پر درخواست گزار سے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید طلب کر لیے۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے رانا شاہد ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ مریم نواز نے میڈیا کانفرنس میں عدلیہ کی توہین کی۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دائر کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے۔ اے ٹی سی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے 75 کارکنوں کو پیش کیا گیا۔ دوران سماعت جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد پر پارکنگ، کینٹین اور صفائی کے ٹھیکوں پر رشوت لینے کا الزام ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی ڈاکٹر بلال محی الدین، ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو کروڑوں روپے رشوت دینے کا الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رکن اسمبلی کو نااہل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔
रुकन असम्बली को नाअहल करार देने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ शहरी की मुतफरिक दरखास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी इदारा है, इलेक्शन का इंतखाबात करवाना और हल्का बंदियाँ करवाना काम है। ये इदारा अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही इस इदारे को बराह रास्त किसी को नाअहल करार देने का कानूनी इख्तियार हासिल है। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तानी अशिया की इसराइल में फ़रोख्त होने का मामला भी सेनेट में उठाया गया। चेयरमैन सेनेट ने भारत में मुसलमान और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत भी कर दी। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की। सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने पेश की। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस बख्श पाशा ने करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क की मईशत सूद फ्री हो। हुकूमत सूद के खात्मे के लिए हर हवाले से इकदाम उठा रही है। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सेनेट इजलास में सेनेटर पलवशा ने भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर करने पर जोर देते हुए कहा, भारतीय पंजाब में सिखों पर भी जुल्म किया जा रहा है। चेयरमैन ने करारदाद का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत की और कहा, आइंदा इजलास में करारदाद मंजूर की जाए। मोहसिन अजीज ने कहा, सिंध तास मुआहदे पर भारत की जानिब से बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ हुई और अब एक खत गर्दिश कर रहा है जो भारत की जानिब से वजीर आजम को लिखा गया, उसको भी छुपाया जा रहा है। खत की भी डेडलाइंस हैं और कुछ इशूज रखे गए हैं। उस खत पर ऐवान में वजाहत की जाए। सेनेटर मुश्ताक का पेश करदा तोशाखाना देखभाल इंतजाम बिल 2023 चेयरमैन ने मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए तहकीक और रजिस्ट्रेशन क्वालिटी इशूज बिल 2023 की भी ऐवान ने मंजूरी दे दी। ये बिल सेनेटर कोहदा बाबर ने पेश किया। मुनशियात पर मबनी मवाद की रोकथाम तरमीमी बिल 2022 ऐवान से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ तहकीकात की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार समेत मुतअद्दिद शिकायत आ चुकी हैं। जायजा लेना होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत में ठोस मवाद है या नहीं। इंतजार में है कि चीफ जस्टिस कब जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करते हैं। दोनों सूरतों में मुअज़्ज़ज़ जज और अदलिया का वक़ार बरकरार रखने की ज़रूरत है। रेफरेंस में जान ना होती तो मुअज़्ज़ज़ जज को बरी किया जाए। मुअज़्ज़ज़ जज बरी ना हुए तो आइन के मुताबिक रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। खत की कॉपी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबान को भी भिजवाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैरिश खान से। जी सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह और मेंबरान को खत लिखा गया है। इस खत की कॉपी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भिजवाई गई है, जो कि दोनों ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं। इस खत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार समेत जो मुतअद्दिद शिकायत हैं वो आ चुकी हैं और जायजा लेना होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये शिकायत में ठोस मवाद है या नहीं। मज़ीद इस खत में कहा गया है कि इंतजार में है कि चीफ जस्टिस कब जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करते हैं और दोनों सूरतों में मुअज़्ज़ज़ जज और अदलिया का वक़ार बरकरार रखने की ज़रूरत है। मज़ीद इस खत के अंदर ये भी कहा गया है कि रेफरेंस में अगर जान ना हुई तो मुअज़्ज़ज़ जज को बरी किया जाएगा और मुअज़्ज़ज़ जज अगर बरी ना हुए तो आइन के मुताबिक रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जी सैरिश खान आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल पहली सहमाही की मद में 1 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ। रवां साल की पहली सहमाही की मद में बिजली 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हुई। सार्फिन से अप्रैल, मई और जून के बिलों में वसूलियाँ की जाएंगी। नर्ख में हालिया इजाफे से सार्फिन पर 20 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में महंगाई के बाइस अवाम बिलबला उठे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से सहर व अफ्तार के औकात दस्तरखान महदूद होते चले जा रहे हैं। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए।
दीगर शहरों की तरह कराची में भी महंगाई की लहर बरकरार है। रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में भी आवाम को सुख का सांस न मिल सका। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतों में बेपनाह इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। जिस हिसाब से दूसरी चीज़ों की पेट्रोल की महंगाई वगैरह ऊपर जा रही है और करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो लोगों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर नहीं है कि वाकई उसको काबिल तहसीन कदम कहा जाए हुकूमत का कि वाकई ये बेहतर किया उन्होंने। ये बरकतों का महीना हमने ज़ामतों का महीना बना दिया है। कोई एज ए मुस्लिम हम बिल्कुल थर्ड क्लास हो गए हैं। ये बरकतों का महीना होना चाहिए। रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई के बाइस हर साल की निस्बत इस साल सफेद पोश अफराद के दस्तरख्वान महदूद हो गए हैं। महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सारी बात है। तो पहले लोगों की जो है परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, अब परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसलिए दस्तरख्वान पे नहीं है इतनी ज़्यादा कि लोग अपने दस्तरखान पे ज़्यादा आइटम्स रख सकें। डिफरेंस तो आ जाता है ना, हाँ, लेकिन ये कि हर एक के हालात होते हैं तो हम मैनेज हो जाता है, हर एक की चीज़ें होती हैं, लेकिन एहसास बहुत होता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। मर्दों को महंगाई के इस दौर में जहां घर चलाने की फिक्र सताती है, तो वहीं खवातीन को किचन चलाने की फिक्र लाहक हो जाती है। कैमरामैन शहरोज खान के हमरा किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। उधर चीनी की होलसेल कीमत में इजाफे से रिटेल नर्ख में 5 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक चीनी की होलसेल फी किलो कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 114 रुपए हो गई है, जिसके बाद रिटेल बाजार में चीनी का भाव 120 रुपए फी किलो हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से सूबे में मुफ्त आटे के मराकज़ के दौरे जारी हैं। उन्होंने ननकाना साहब और कसूर में मुफ्त आटा फराहमी के मराकज़ का दौरा किया और शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त आटा मराकज़ का दौरा किया और आटा फराहमी के इंतजामात को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मर्द और ख़वातीन के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का अमल का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को शहरियों को आटे के असूल में दरपेश मसाइल हल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कसूर में स्मार्ट मैरिज हॉल में मुफ्त आटा फराहमी के मरकज़ का दौरा किया। और दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाए। रमजान मुबारक में जज्बा इसार, बढ़ती महंगाई के पेश नज़र कराची के मुखय्यर अफराद ने बेशतर इलाकों में सस्ते बाजार कायम कर दिए ताकि शहरी सस्ते दामों अशियाए ज़रूरियात खरीद सकें। सबर के महीने में जज्बा एसार का खुला इजहार, मुखय्यर हजरात ने लगाए बेशतर इलाकों में सस्ते बाजार। सस्ते बचत बाजार का बुनियादी मकसद शहरियों को माह रमजान में महंगाई से किसी हद तक रिलीफ देना है। शहरी कहते हैं ऐसे बचत बाजारों से महंगाई में कुछ बचत मुमकिन हो जाती है, जरूरत की अशिया सस्ते दामों मिल जाती है। ये जो लोग अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने बाजार लगाया है और इतना अच्छा बाजार लगाया है और यहाँ पे हर चीज़ मुनासिब रेट पे मिल रही है और आवाम खुश है। जो चीज़ हमारे हुक्मरानों को करनी चाहिए वो लोग नहीं कर रहे। ये हमारे भाई लोग हैं, इनको दिल में अल्लाह का खौफ है, इन लोगों ने बाज़ार लगाया हुआ है, ये अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और हर चीज़ मुनासिब रेट पे दे रहे हैं और आवाम यहाँ पे आके खुशी से लेके जा रही है। बचत बाजारों में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाने वाले कहते हैं माह मुकद्दस में शहरियों की जरूरत की अशिया बगैर मुनाफा फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ हम 26 हफ्तों से बचत बाजार लगा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदने आते हैं। मार्केट से बहुत कम रेट में आपको चीज़ें मिलती है। जो अब प्याज जो है जैसे 100 रुपये चल रही है, 100 रुपये किलो, हम 150 रुपये की 2 किलो दे रहे हैं और आलू जो है 120 रुपये के 2 किलो चल रहे हैं तो हम 90 रुपये के 2 किलो दे रहे हैं। कराची वालों को और अल्लाह हिम्मत दे भाई कि मुल्क को, पूरे मुल्क को लेके भी चलते हैं और आगे मज़ीद भी हम लोग लेके चलेंगे। और इस तरह के कई बाज़ार इस वक्त कराची में ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पे लोगों की सपोर्ट भी हो रही है। और अब ये कि पहले एक ये मिडिल क्लास तबका जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त वो हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी हिम्मत से कि कोशिश कर रहे हैं कि यार हम लोग कुछ आगे बढ़ें और इनकी अपने से छोटे लोगों की हम खिदमत कर सकें। सस्ते बचत बाजार अगर माह सयाम के अलावा आम आयाम में भी लगाए जाएं तो गरीब तबके को रिलीफ मिल सकता है। महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाजार लगा दिए गए हैं। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ निमरा अकरम, सच न्यूज़, कराची। अहम मौज़ूआत पर उलमाए कराम की सेरे हासिल गुफ्तगू। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुल्हाए अक़ीदत, तकरीरी मुकाबला और क्विज सेगमेंट। सच टीवी की खुसूसी मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन नाजरीन की तवक्कुआत पर पूरी उतर रही है।
माह सयाम की बाबरकत साआतें, सहर व अफ्तार में सच टीवी की खसूसी मरहबा रमजान ट्रांसमिशन। 12वें रोजे की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में खुश अलहाल कारी ने आयत बैयनात की तिलावत फरमाई। नात ख्वानों ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। निगहबाने नबी सरवर अबू तालिब की हस्ती है, वो पिदरे है दरो सफदर अबू तालिब की हस्ती है। मौलाना अनीसुल हसनैन खान और मौलाना अजीज हैदर कादरी ने तबलीग व अशात दीन अपने किरदार के जरिए के मौजू पर मुदल्लल गुफ्तगू की। 1,24,000 से कम बेश अंबिया मुरसलीन कायनात में गुजरे हैं। किसी नबी या रसूल की वो तालीमात या उनके ज़िंदगी के जो हयात खिदमात वो इस तरह जिंदा नहीं है हमारे सामने मौजूद जिस तरह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ये तो एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बाकी नबियों को जो जिक्र कुरान करीम में है वो है, बाकी तो आसमानी किताबें भी वो असल हालत में नहीं है। हर मुसलमान ये चाहता है कि उसके घर में एक इस्लामी माहौल हो, उसके बच्चे नमाज की तरफ राग़िब हों। अगर वो लोग बच्चों को कहेगा नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन खुद वो काम नहीं करेगा तो बच्चे भी उसको एक मजाक समझेंगे, उसको संजीदा नहीं लेंगे। बजाय इसके कि वो बच्चों को कहे कि नमाज पढ़ो, अमलन उनके सामने नमाज पढ़े। ट्रांसमिशन के दौरान क्विज मुकाबला नमल यूनिवर्सिटी के नाम रहा। तकरीरी मुकाबला नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के नाम रहा। पहली पोजीशन हासिल की है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मिफ्जाल याकूब नमल ने 90 नंबर हासिल किए और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने 70 नंबर हासिल किए। सच टीवी की खुसूसी मरहबा रमजान ट्रांसमिशन नाजरीन में भरपूर मकबूलियत हासिल कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और रहिए सच के साथ।